Okay. Okay. Hello. Like we should begin right now. Okay. So without wasting any further time, we should start discussing the paper. So is my screen visible to you? Yes, Aditi, sir. can you please respond? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. What's your name? So Pushparaj Patel. Okay, Pushparaj. Thank you. Thank you so much for your coordination. People are still joining, but let them join. You'll see that. No further delay. Okay. So we'll start discussing this paper of GSI prelims 2025. That is paper 2, geology paper. अब इस पेपर में हमारे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं. सो इट इज लाइक so this paper is like a mixture of both of the things. So अब factual कोई चीज तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता because it is a fact. इसमें तो कुछ ऐसा कुछ समझने वाला या पढ़ने वाला ऐसा कुछ खास नहीं है. बट जो कंसेप्चुअल चीज है आई थिंक उसमें हम लोग कुछ आगे समझ सकते हैं उसको, कि ताकि आगे आने वाला जो प्रीलिम्स है या फिर कोई और एग्जाम है उसमें कैसे चीजें कैसे क्वेश्चंस को हमको अप्रोच करना है. ये डिस्कशन ऑलरेडी आंसर की हैज बीन प्रिपेयर इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. आप लोग इससे भी देख सकते हैं. बट अब कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ये आज के मेन लाइक इट वाज it is the main agenda of today's discussion. Okay, so let us begin right now. Okay. So like what I'm drawing on the screen, like underlining on the screen, is it visible? Yes, Hello. sir. Okay, Yes, sir. okay. Okay. Thank you, thank you so much. So like yes. So this was the first question. Actually, frankly speaking, ये जो question जो ये पहला वाला आया है, it is asked about the different types of like soils. I have also seen some of the terms I'm acquainted with some of the terms like oxysol and all these things, but each and every term it was like a complete new to me. So it is again a factual question. We can't do anything to it. This has been taken by GSI from any kind of book which GSI was like UPSC was referring to make the paper. So like there are 120 questions. So these are some of the questions which I think that a majority of the people will be unable to do, and it is advisable to leave the questions. But if you know, on the other hand, agar aapko aata hai, then it is very good. So like it is say na that vertisol, it is clay rich soil that shrinks and swells with moisture changes. I think it can be related to some kind of clay minerals like vermiculite and all these things which have water in their structure and they swell, and this bentonite clay and all these things. So it is a soil which is related to these kind of things. So it is a factual question, by the way. So I'm not going deep into it. Okay. So this was the thing. Now coming to this second. Now coming to this second. I think someone is admitting from my side. I don't have to admit again. Okay. So now coming to this question number 2. This question is you can consider it. The question is from in this what we say in this UPSC GSI syllabus. It is from General Geology. That is paper 1. And if you consider this as in the case of gate and net, it is from geophysics. Okay. So like paper changes, so the thing also changes, that whether it is being a part of general geology or it is being a part of gate and net. So like the statement one says that the seismic waves follow the curved paths. Okay. So if you have seen the diagram of this seismic wave, let me take a notepad for it. Okay, that would be better. Is it visible to you guys? Hello?
Hello. Yes, sir. Okay, okay, thank you so much. So, yeah, the seismic wave takes curved paths. Now we have seen the diagram of seismic waves of shadow zones. Like the waves are like this. They are P waves and S waves. They are moving like this, like this, like this. Okay. Why so? Why so in curved path? Why not in straight line? Why not in straight line? Because the interior of the earth, interior, okay, interior of the earth is inhomogeneous. Okay, it is inhomogeneous. There are compositional variations as well as mechanical variations. Therefore, there has been difference in the, because of this mechanical variations, there are difference in the elastic properties. Elastic properties में difference होता है. Like the elastic property of upper mantle and lower mantle is different. There are phase changes in that, because of which there is some kind of difference in the density also. So I think you guys must be acquainted of it. So ये कर्व्ड पाथ में इसीलिए जाते हैं बिकॉज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इनहोमोजीनियस. वाइसी वर्सा ऐसे समझते हैं कि सीज्मिक वेव्स कर्व्ड पाथ शो कर रही है, मतलब हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है दैट इज इनहोमोजीनियस. ओके, ये समझ में आया आपको? हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, 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 okay. For a minute. So yeah, this is so the first statement. It is definitely correct. Okay. So this first statement, it is for sure it is correct. Now what the second statement says? The velocity of the seismic waves generally increases with the depth. यहां तक जो चीज है ये एकदम करेक्ट है. जनरली देखिए, आप टर्म इस्तेमाल करिए जनरली. वैसे जो इनने जो डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूटीज होती हैं वहां पे कुछ वेलोसिटी डिक्रीज करती है, जैसे लो वेलोसिटी जोन में. जैसे आपका आपका वो जो होता है, क्या कहते हैं, आउटर कोर इनर कोर, दैट इज योर गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी, वहां पे ड्रास्टिकली रिड्यूस करती है. बट जनरली यहाँ पे इनने बहुत स्पेसिफाई किया है, इट इज लाइक थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया. जनरली जनरली ये डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, सॉरी. ओके, and the reason they have also given the result of increasing pressure that squeezes the rock into more compact rigid material. अब आप जैसे नीचे जाते हैं the density is increasing, that you know, that is from crust to upper mantle to lower mantle to outer core to inner core. Density आपकी this sorry, this sign is wrong. It is the density is increasing. But अगर आप p waves की velocity का फॉर्मूला देखें और s wave की velocity का फॉर्मूला देखें, that is under root mu by rho. इन दोनों में डेंसिटी तो डिनोमिनेटर में है. देन देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन कि भाई डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो न्यूमरेटर तो डिक्रीज करेगा. बट इस केस में तो न्यूमरेटर इंक्रीज करता है. व्हाई सो? दिस इज बिकॉज यहाँ पे, यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज म्यू, that is modulus of rigidity, and this k, that is your bulk modulus. ये ज्यादा रेट से इंक्रीज करते हैं. बल्क मॉडुलस ये ज्यादा रेट से इंक्रीज करते हैं. दैट इज व्हाई we say that numerator is increasing with a greater pace as compared to the denominator. That's why the velocity of p wave and s wave increase करती है. ये तो हमको फॉर्मूले से क्लियर हो गया. अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होता है? Bulk modulus is like, it is the ratio. Again, I think I should use this notepad because it is very congested in here. So the bulk modulus जो होता है, that is your k. It is your volumetric stress upon volumetric strain. That is sigma n upon delta v.
कितना आप कंप्रेस कर सकते हैं किसी भी चीज को, कितना आप दबा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. Modulus of compressibility, it is bulk modulus. Like it is the inverse compressibility, it's this inverse of K, but it refers to this mean stress sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3. Sorry. Uh, yeah. Sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 upon 3, and this complete expression we call it as sigma m, and that is change, and in the denominator we have change in volume. So this volumetric stress, it increases as we go inside the earth. And similarly, mu is modulus of rigidity. What is modulus of rigidity? It is shear stress upon shear strain. It also increases. Now, this is a very important topic, mu and K, volumetric, like this bulk modulus and modulus of rigidity. And we will discuss this thing like, if I'm going deep into it, like it will take a complete class over it. So मुझे लगता है कि इतना मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा. So that is the thing. So coming back to the question, in this question we have is statement 2, which says that okay, the velocity, the result of the increasing pressure that squeezes the rock into more compact rigid material. Yes, it is more compact. So both the statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation. This is 100%, this question is correct. Okay, any doubt? Please say any doubt. Hello. Hello. No, sir. Any doubt in this? Is No, it sir. okay? Okay. Is it okay? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Now this question was like complete out of the box. I am unable to categorize it कि भाई इसको जो ये 10 पेपर दिए हैं प्रीलिम्स के, इसमें इसको किस पेपर में रखा जाए. This thing. हाँ, कुछ इसको जियो केमिस्ट्री में रख सकते हैं, बट दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइक geochemistry, atmosphere, and all these things. That is your mains syllabus. But I think जिसने मेरा strategy session attend किया होगा, मैंने इसमें कहा था कि there is nothing called pre and mains. There is a syllabus of pre and mains. एक ही चीज का syllabus होता है, that is mains. तो mains के ही syllabus से सारा काम होता है अपना. ठीक है. So, what this statement states that residence time of chemicals in the atmosphere are usually longer than those in the oceans. Look, if you don't have the idea about the residence time of oceans, so like residence time of atmosphere, कि ये residence time atmosphere में क्या है, you should get an idea, like you have studied about like atmospheric sciences, oceanography, you might have studied this kind of things. So you might have studied the concept of residence time over there in the oceans of different ions which are there in the ocean. एंड लाइक ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द लाइक अभी भी कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादातर रिजर्वायर है, इट इज इन द ओशन. ओके, someone wants to join. Let it be. So just wait for a minute, guys. Wait for a minute. Okay. Yeah. So let us begin. So या तो ये जो रेजिडेंस टाइम है क्या बोलते हैं ओशंस का, अगर जो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आज भी ओशंस में सबसे ज्यादा रिजर्वायर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इट वाज देयर इन द इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. ये इनिशियल एटमॉस्फेयर पे था, और उसके बाद फिर बारिश हुई, रेनफॉल हुई, और फिर ओशंस में आके इसका रिजर्वायर बन गया, और अभी तक ये चीज ओशन में है. सो रेजिडेंस टाइम इसका मतलब ओशन का एटलीस्ट एटमॉस्फेयर से तो ज्यादा हुआ. सो स्टेटमेंट 1 इज लाइक it is like wrong. Okay, it is wrong because yeah, they are usually larger. ये wrong है.
And in terms of total mass, like in statement 2, in terms of total mass, the atmosphere is a smaller reservoir is a smaller reservoir than the oceans, and the fluxes into and out of the atmosphere can be larger. Now, first of all, focus on this second part. Fluxes into and out of the atmosphere can be larger. आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज change in something per unit area. This is your flux. Okay, ये फ्लक्स होता है पर यूनिट एरिया में चेंज कितना हो रहा है. अब क्योंकि रेजिडेंस टाइम किसी चीज का कम है तो जाहिर सी बात है कि वो वहां से ज्यादा जा रहा होगा या फिर ज्यादा आ रहा होगा. तो फ्लक्स आपके एटमॉस्फेयर का ओशन से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हेलो हेलो, आर यू गेटिंग दिस? हेलो. Sir, please repeat. Okay. I'll sure. So the statement 2 or statement 1 itself, कौन सा रिपीट करना है? Statement 2. ओके, स्टेटमेंट 2. तो स्टेटमेंट 2 में मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कैसे देखना है. देखिए रिजर्व, यहाँ सेकंड पार्ट देखिए, फ्लक्सेस इनटू एंड लाइक, बहुत ज्यादा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. हाँ, नाउ दिस कैन बी या. सो दिस स्टेटमेंट 2. ओके, सो स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि फ्लक्सेस इनटू एंड आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी लार्जर. अब फ्लक्सेस इनटू एंड आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी लार्जर. अब मैंने ये कहा कि एटमॉस्फेयर में रेजिडेंस टाइम कम है, तो ये एक एरिया है, सपोज करिए दिस इज एन एरिया. अब रेजिडेंस टाइम कम है मतलब वहां से चीजें निकल रही होंगी और आ रही होंगी. फ्लक्स इज समथिंग विच इज रेफर्ड टू एज चेंज इन समथिंग पर यूनिट एरिया. चेंज इन समथिंग पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स. ओके, तो अब इसका रेजिडेंस टाइम अगर किसी भी चीज का कम होता है मतलब वो रुक नहीं पा रहा है, वहां पे रुक नहीं पा रहा है तो वो जा रहा है ना, निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है, रुक नहीं पा रहा है वो, तो चेंज उसमें ज्यादा हो रहा होगा ना, उसका फ्लक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ओशंस ना. ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. जब कोई चीज कहीं पे रुक नहीं पा रही है, आपके कमरे में कोई चीज अगर रुक नहीं पा रही है, कमरे से बाहर निकल जा रही है, तो आपके कमरे का फ्लक्स ज्यादा होगा ना. और अगर आपने कमरा बंद कर दिया, कमरे से आप कोई चीज बाहर नहीं निकाल रही है, तो उसका रेजिडेंस टाइम ज्यादा होगा. तो रेजिडेंस टाइम एंड चेंज इन फ्लक्स, दे आर अपोजिट कॉन्सेप्ट. ओके, सो आपको यहीं से आपका आंसर मिल गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या करना पड़ा है. बट स्टिल अब देखिए, ये दूसरे पार्ट ने पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. पहला स्टेटमेंट ये जो आपका कह रहा है ये रेजिडेंस टाइम वाला, और फिर इन टर्म्स ऑफ टोटल मास द एटमॉस्फेयर इज अ स्मॉलर रिजर्वायर देन द ओशंस. ओके, जाहिर सी बात है कि ओशन इज अ ग्रेटर रिजर्वायर and it has been primitive since the formation of the earth, that is 4.6 and 4.5 billion years ago. Okay, so the answer to this question would be statement 1 is false and statement 2 is correct. आपको समझ में आया रीजन? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? हेलो, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ. हाँ सर, समझ में आ गई. ओके, थैंक यू. So, like again, this is the next question which is being asked. This is a question of like the chapter volcanoes from the book G.B. Mahapatra. G.B. Mahapatra से फिजिकल जियोलॉजी में हर साल ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं इसमें. So it is again a factual type of question. I think ये जो kinder, like we have to what the question says कि which of the following pairs is not correctly matched. हमें एक not correctly match देखना है. पहला देखते हैं किंडर कोन्स, सिंडर कोन्स जो भी कहते हैं इसको. a bowl shaped pit found at the summit of the most volcanic mountains. Now this is wrong. The bowl shaped pit which is surrounding the summit of a volcano, that is your crater. Then what are kinder cones? You should go and study in G.B. Mahapatra. They are small conical type of forms, like positive landforms, which are related with acidic lava flows.
if I'm like they think they can be a thing that I'm like I'm forgetting, but this is the thing. This is associated with acidic lava flows. It is written in JB Mahapatra of physical geology. तो हमको तो ये पहला क्वेश्चन ही मिल गया कि इट इज नॉट करेक्टली मैच. आई थिंक बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा. कैल्डेरा क्या होता है, डाइट्रीम्स क्या होते हैं, किम्बरलाइट पाइप्स और डाइट्रीम्स, एंड लाइक स्ट्रैटोवोल्केनो माउंट फूजी इज अ वेरी renowned example for that. So I think there is nothing much to explain in this question. You might have understood it. Okay, तो आगे चले हम लोग. हेलो, आगे चला Yes, जाए. sir. Okay, chalo. Now in this question number 5, like I'm going to come to this question afterwards, because I think there can be some other answer to it. किसी ने ये क्वेश्चन किया है, किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था अपने प्रीलिम्स के पेपर में. प्लीज गाइस इंटरैक्ट करिए. किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इसमें? No, sir. What is your name? Diksha Mohan. दीक्षा मोहन. ओके, आपने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था दीक्षा? नहीं सर, मैंने नहीं किया. अच्छा, और कोई है यहाँ पे? लाइक हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड? लेट मी सी दिस. 18 other students have joined. Richa, have you attempted this question? नो सर, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था. अच्छा, आप लोग ने एग्जाम नहीं दिया. प्रीति, आपने दिया एग्जाम? पीयूष आपने एग्जाम दिया? प्रदीप, पीयूष, कोई लोग? यस सर, बट अटेम्प्ट नहीं किया. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. प्रदीप, आपने दिया एग्जाम? अमित, आपने दिया? अच्छा, मदन, यस मदन, आपने अटेम्प्ट किया था. व्हाट इज द आंसर? आपको क्या आंसर मिल रहा है? सर 10% सर जो उसका कॉन्सेप्ट है आइसोस्टेसी का, उसके अकॉर्डिंग 10% ही मार्क किया था सर मैंने. आपने 10% मार्क किया है? यस सर. अच्छा, आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट से तो यार 10%, या तो मैं कुछ गलत सॉल्व कर रहा हूँ. We'll look into it. Okay, this question we'll look into it, because I believe that it should be somewhere say about 50% यार. मेरे से ये पता नहीं क्यों 50% के करीब लग रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर. बट स्टिल आप मेरे आंसर में मत जाइए. आई एम नॉट वेरी श्योर. आपने कैसे आइसोस्टेसी लगाया? जैसे इसमें किया गया वैसे ही लगाया आपने? ये जो आंसर की में जैसे लिखा गया है मदन, वैसे ही आपने किया है? यस सर. ये सेम इसी तरीके से? ये कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है? आपने किया है ये चीज कि पहली बार कर रहे हैं? सर जो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट है सर, उसमें 10 में से सर 9 पोर्शन वो नीचे चला जाता है सर. वन पोर्शन ही उसमें ऊपर आता है. उस कॉन्सेप्ट का यूज करके सर किया था. ओके 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 ओके. ओ माइट बी, मुझे लग रहा है कि आप लोग करेक्ट होंगे, बट स्टिल वील कम टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन. ठीक है, वील कम टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन. चलो, वील डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्दर. नाउ दिस स्टेटमेंट वाले, नाउ व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस पेपर इज एन इंटीग्रेटेड पेपर. ये मैंने क्यों कहा कि ये इंटीग्रेटेड है? क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे होंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर अभी भी कोई ज्वाइन कर रहा है. It is disturbing the class actually. Oh, sorry. Some seniors have also joined, I guess. So अगर आपने, हाँ, so I'm going to discuss about the this hotspot thing. हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये क्यों ये इंटीग्रेटेड पेपर है. अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में इन 2023 देयर हैव बीन अ हेल लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड. ओके, स्टेटमेंट्स इसमें खूब सारे पूछे गए थे. एंड इन 2024 द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड. Okay, from directly, like they were direct questions to act, single tick mark, not much statements. But in 23 there were a hell lot of statements. So here the questions are directly asked, but in the form of statement.
ये आप लोग को महसूस हुआ जिसने पेपर दिया था? आप लोग को लगा ये चीज कि क्वेश्चन तो डायरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट बहुत पूछ रहा है? आप लोग को लगा ये? Yes, sir. Yes, that was the thing. Okay, so again, what is the thing? Like, this question states that statement one again, a hotspot is an area of volcanism, high heat flow and crustal uplifting. Now, what is hotspot? Okay, hotspot is the surface manifestation. See, they have just copied the line from the book. Surface manifestation of mantle plume. Now, this is the crust. Okay, this is the crust, and this is the mantle plume, tail of mantle plume, and this is the head of mantle plume. Okay, so ये नीचे आता है, इसको हम लोग कहते हैं, this is called basal underplating और crustal underplating. ये नीचे ऐसे underplate करता है. Okay, let me use the notepad first. That would be better because यहाँ पे उतना space नहीं है. Okay, so what is the thing? ये क्रस्ट है, ये नीचे से मैंटल ब्लूम आया और यहाँ पे आके बैठ गया. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड योर अंडरप्लेटिंग. सिंपल टर्म, दिस इज अंडरप्लेटिंग. mantle underplating, crustal underplating, anything you can say. Okay, now what is, ये सबसे पहले करता क्या है? इसका एक सीक्वेंस होता है. पहले ही आके बैठा, then it causes crustal doming. ये नीचे से पुश करता है, यूं ऐसे करके ये डोमिंग बनाता है. दिस इज द डोमिंग, दिस इज द crustal doming. यू ऐसे करके ये क्रिस्टल को ऐसे आर्किंग अपवर्ड, इट इज कॉल्ड डोमिंग और आर्किंग अपवर्ड्स ऑफ क्रस्ट. ओके, ये सेकेंड स्टेज हो गया. तो ये फर्स्ट स्टेज है, राइजिंग अपवर्ड असेंट. ये थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज में ये होता है कि इसमें क्या बोलते हैं कि पाइप्स निकलते हैं ऐसे करके, दीज आर दी पाइप्स. और फिर यहाँ से वोल्केनिज्म होता है. और ये जो इसका एक सरफेस मैनिफेस्टेशन होता है, this surface manifestation of volcano, it is called hotspot. This we called it as hotspot. Okay, इसमें समझ में आया आप लोग को ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Have you understood the sequence? Yes, sir. Hello? Okay. Have you understood the sequence? Hello? Hello? Am I audible? समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Okay. So now come to the question. Hotspot is an area of volcanism, high heat flow and crustal uplifting. Okay, it is correct. Crustal uplifting, high heat flow. It is the surface manifestation of the mantle plume and partial melting. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है? Coming to the next question. It is also a very beautiful question of sequence stratigraphy plus geophysics. Okay, ये क्वेश्चन क्या कहता है? At any location sea level changes due to deglaciation effect. Deglaciation effect पे sea level कैसे करता है? इसके लिए आपको ये तीनों चीज पता होनी चाहिए. What is eustatic, what is tectonic components and what is isostatic component. This is suppose the mean sea level. This is your mean sea level. This is the basement. Okay, this is the base floor of the ocean. Okay, and this is the center of the earth. सेंटर ऑफ द अर्थ से मीन सी लेवल तक की जो चीजें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं यूस्टैटिक सी लेवल. यूस्टैटिक सी लेवल means from the sea level which is measured from the center of the earth, it is called eustatic sea level. अब ये eustatic sea level, इस eustatic sea level को change क्या क्या चीजें करेंगी? इस eustatic sea level को what things will change this eustatic sea level?
इस यू स्टैटिक सी लेवल को अगर डीग्लेशिएशन होगा तो पानी आएगा, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी खूब सारा आएगा, तो पानी की वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ग्लेशिएशन होगा, पानी इवेपोरेट होगा, पानी का लेवल कम होगा। पानी का लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है यू स्टैटिक सी लेवल। The volume of water which is changing, the volume of water which is changing, it refers to as U static sea level. Okay. And what is then tectonic sea level? What is this tectonic component? ये पानी का लेवल से कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर ये बेस है, बेस, अगर ये बेस आपका नीचे जा रहा है तो एरिया एकोमोडेशन स्पेस बढ़ रहा है, सी लेवल इंक्रीज कर रहा है। अगर ये बेस आपका ऊपर जा रहा है, एकोमोडेशन स्पेस कम हो रहा है, सी लेवल डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया आपका टेक्टोनिक कंपोनेंट। दिस इज फ्रॉम बेस चेंज एस्पेक्ट। एंड व्हेन वी से आइसोस्टैटिक कंपोनेंट, इससे हम लोग सी लेवल के बारे में बात नहीं करते, ये हम लोग क्रस्ट के बारे में बात करते हैं कि दिस इज द नॉर्मल क्रस्ट। अगर इसमें कोई माउंटेन ऊपर बन गया तो नीचे इसका एक रूट बनेगा। अगर माउंटेन की हाइट और ऊपर हो गई तो इसका रूट और नीचे हो जाएगा। अगर माउंटेन की हाइट नीचे हो गई तो इसका रूट और नीचे हो जाएगा। ये जो बैलेंस होता है रूट और हाइट एलिवेशन के बीच में, दैट रेफर्स टू एज आइसोस्टैटिक कंपोनेंट। क्या, अब आप लोग खुद बताइए, क्या ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की वजह से आइसोस्टेसी में कुछ फर्क पड़ रहा है? हेलो, क्या आइसोस्टेसी में कुछ फर्क पड़ेगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? आप लोग को समझ में नहीं आया याला? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? आप लोग को समझ में आया ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो, समझ में आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ओके, थैंक यू। यस सर। सो आप बताइए इसमें कि किसने बोला ये, आपका नाम क्या है? धृतिकाम जना। ओके, आपको, आप बताइए क्या आइसोस्टैटिक कंपोनेंट में कोई भी चेंज आएगा डीग्लेशिएशन की वजह से? नो। नो, एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो क्रस्ट की बात है। So the answer to this would be U static and U static and this tectonic, yeah, U static and tectonic components. So okay, the answer here it is given B. Yeah, it is so doubtful. सर वो आइसोस्टैटिक में चेंज आ सकता है बिकॉज मैंने मतलब कहीं पे पढ़ा था कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अभी भी डीग्लेशिएशन मतलब ये हो रहा है ना ऊपर। ओके, तो तो आइसोस्टैटिक कंपोनेंट में चेंज आ सकता है इसमें? तो मतलब वो कंट्रीज का जो सी ये बढ़ रहा है मतलब क्रस्टल लेवल, तो वो भी तो आइसोस्टेसी हुआ ना कि क्रस्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और वो बस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो रहा है जहाँ पे एक मतलब ग्लेशियर है। या ग्लेशिएशन की वजह से ही हुआ। okay, so there can be a possibility that I have understood it wrong. So because I have understood this thing as isostatic components related to this positive and negative root anomaly. So okay, I'll get back to this question. Okay, I'll get back to this question. I have to look into it. I'll get back to this question. Okay. So आप लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने ये बी मारा है क्या इसमें? किसी ने ए हाँ मारा सर। है? क्या था, बी मारा है आपने? हाँ सर, बी दिया है। अच्छा अच्छा, बी किया है आपने। Okay, so there can be a possibility. I'll look into it, okay, because I think that I have missed something. ये आंसर की एक्चुअली मैंने नहीं प्रिपेयर की है। So
I think there can be a possibility that I'm missing some of the concepts. Okay, I'm also looking to this answer key like first or second time. Okay, no problem. I'll get back to this question. Just remember this question. I'm writing it down myself. Question number 7. अच्छा, is anyone there जिसने A मारा है? किसी ने A मारा है? कोई ऐसा है जिसने A लगाया है इसमें? Is anyone there? चलो कोई नहीं है. I think I have to look into it. No problem. Now this again is we are going too slow, so I'm going to increase the speed, not going much into the theory questions. Now again it is a theory question, like which of the following processes is responsible for the distribution degree of erosion, sediment transport and deposition? So I think it is wave refraction. It is a direct theory question. It asked from sedimentary environment. Okay, इसमें किसी को डाउट है? It's a theory question. It is written over here. Similarly, again, this is a theory question, but I'm going to explain a bit about it. Again, they have been directly asked from this book, G.B. Mahapatra, for glacier. Now, they are asking that which of the following statements is or are correct. Eskers are deposited by subglacial fluvial system. It is correct because like this, consider this is a glacier. Now at the bottom part 3D में समझिए, यहाँ से पानी यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है और यहाँ से इसका पानी निकल रहा है, and then we have the ridges which are being formed, elongated ridges which are being formed, and they are referred to as eskers. So it is a subglacial, ग्लेशियर के bottom part पे melting हो रही है because of difference in temperature, और वहां से ये पानी निकल रहा है. It is the exact line which has been taken from G.B. Mahapatra. So statement 1 is absolutely correct. Now comes to statement 2. The larger terminal moraines are generated by a fast retreating glacier. टर्मिनल मोरेन ऐसे होते हैं, नाउ सपोज दिस इज द एंड ऑफ द ग्लेशियर और यहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं उसको हम लोग टर्मिनल मोरेन कहते हैं. अब टर्मिनल मोरेन को डिपॉजिट होने के लिए, टर्मिनल मोरेन इट इज नथिंग बट अ ग्लेशियल लोड विच इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर. सो एंड पार्ट ऑफ द ग्लेशियर. अब अगर बड़ा हमको डिपोजिशन करना है तो हमको यहाँ पे ग्लेशियर को काफी देर रोक के रखना होगा. अगर ये ग्लेशियर वापस से रिट्रीट करने लगेगा पीछे तो लार्ज टर्मिनल मोरेन्स कैसे डिपॉजिट होंगे? रिट्रीटिंग मोरेन्स और ऐसे डिपॉजिट होंगे. टर्मिनल मोरेन्स डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे इसमें. सो दैट इज द थिंग. सो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. And medial moraines, what are medial moraines? ये साइड वाले मोरेन्स होते हैं जो साइड में बनते हैं. ये जब दो ग्लेशियल वैलीज आपस में मर्ज करती हैं, कॉन्फ्लुएंस करती हैं, तो बीच में आपका ये मीडियल मोरेन बनता है. ओके, सो स्टेटमेंट 2, आपको ये क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है? स्टेटमेंट 2 गलत है आपका, तो 2 जहां दिया है वो गलत है. ओके, नाउ 1 ओनली तो हो नहीं, 1 तो करेक्ट है, तो और 3 भी आपका जो है सही है, मीडियल मोरेन्स, तो 1 and 3 would be an answer. Okay, the theory is written over here. The theory exactly is written over here, and you can refer to G.B. Mahapatra for this. I always said that G.B. Mahapatra, in case of GSI, it is like the best book to study for physical geology. Okay, इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? हेलो? नो सर. ओके, समझ में आया याला? हाँ सर. Okay, so now coming to this question number 10. Drumlins के लिए ये again the question is asked from glacier only. It is a theoretical question. Now they are depositional feature. I think this it is definitely correct. So this two statement is correct. So there will be any answer between A and B, and it has a gentle longer slope pointing towards the upstream direction. That is wrong. The gentle face in case of drumlins, it faces the downstream direction, and steeper slopes are upstream. That is the characteristic of
ड्रम्बलिन। ओके, सो स्टेटमेंट 3 आपका रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है, सो द आंसर वुड बी ए। ओके, not doing much deep into it, okay, because we have much to discuss. Yeah, this is a very good question. This question, if someone has studied structural in a very detailed manner, तो ये question बहुत अच्छे से वो समझ पाएगा. That is a very good question. Okay, this question is a mixture of structural geology and physical geology. Okay, we'll study this part. What it says, please wait for a minute. Yeah, so what it says, that removal of the surface material, like consider the following statements regarding mechanical weathering, that is physical weathering or erosion. Removal of the surface material results in the easing of confining pressure on the underlying rocks. Okay, this statement is correct, there is no doubt in that. Like these are the rocks which are present from surface to underneath. So removal of the surface material, यहाँ से जितनी चीजें आप remove करेंगे उतना pressure underlying rocks पे decrease होगा, decrease करेगा उतना pressure. Okay, तो that this statement is correct. It is like very factual. Layman language में भी अगर किसी को ये बताएंगे तो ये लगेगा ठीक है, क्योंकि rho GH में जो है आपका जो density है वो धीरे धीरे कम हो रही है. Okay, now the under natural conditions, the dilation of the rocks takes place at right angles to an erosional surface. Now ये चीज क्या है? ये erosion surface is always a horizontal surface, ये आपको हमेशा पता होगा. अब इरोजन हो रहा है, सरफेस मटेरियल यहां से हट रहा है, यहां से सरफेस मटेरियल हट रहा है, इरोजन हो रहा है, यहां से सरफेस मटेरियल यहां से हट रहा है. तो जब रॉक एक्सपैंड करेगी, कोई भी चीज आप इमेजिन करिए, आपने कोई भी चीज दबा के रखी है, अब आप अगर अपना ऊपर वाला हाथ हटाएंगे ऊपर से, तो वो रॉक ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगी. मींस इट इज एक्सपैंडिंग इन दिस वे, यू ऐसे एक्सपैंड करेगी. और ये जो फोर्स लगेगी, दैट इज, इसमें जो स्ट्रेस लगेगा, दैट इज योर सिग्मा 3. ओके, आई एम अगेन ड्रॉइंग दिस थिंग. ये ऐसे 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 करके है, ये जैसे आपने रिमूव किया, ये ऐसे सिग्मा 3 ऐसे ऊपर लगेगा. सो द डायलेशन ऑफ द रॉक्स, डायलेशन मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब डायलेट हो रहा है, थोड़ा सा हल्का हो रहा है वो, तो दैट इज द चेंज इन द वॉल्यूम इज डायलेशन. सो इट इज टेकिंग एट राइट एंगल्स टू द इरोजनल सरफेस. इरोजनल सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये इसके राइट एंगल पे हो रहा है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. This statement is correct. Now the dilation results in cracks running at right angles to the surface. Now what is this thing? एक चीज आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, सिग्मा 3 के परपेंडिकुलर फ्रैक्चर बनता है, परपेंडिकुलर फ्रैक्चर डेवलप होता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्चर क्राइटेरिया इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी. सिग्मा 3 के परपेंडिकुलर आपका कॉन्सेप्ट फ्रैक्चर डेवलप होता है. तो सिग्मा 3 ऐसे है तो फ्रैक्चर आपका परपेंडिकुलर डेवलप होगा. आई एम यूजिंग अनदर कलर टू लाइक wait for a minute, color changes from this. Okay, these are the fractures which are developed, these are the fractures which are developed, these are the fractures which are developed perpendicular to the sigma 3 direction. It is perpendicular to the sigma 3 direction. And what it has asked, cracks running at right angles to the surface. ये surface के तो parallel है ना, right angle पे कहाँ है, ये तो surface के parallel, it is right angle to sigma 3. So this statement is wrong. This statement is correct. This statement is correct. So answer would be A. ये समझ में आया किसी को? Please ये बताइए, ये समझ में आया आप लोग को? मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ. It is very important thing. Hello? Hello? सर Hello? थर्ड ऑप्शन एक बार फिर से समझा दीजिए. थर्ड ऑप्शन एक बार फिर से समझाता हूँ. ओके, मैंने क्या कहा, ये आपका रॉक मतलब ये आपकी लेयर्स हैं. ओके, ये सिग्मा 3 इसमें ऊपर लग रहा है, ठीक, क्योंकि आप सरफेस से मटेरियल हटा रही है, रॉक डायलेट कर रही है, ऊपर जा रही है, सिग्मा 3 ऐसे जन रहा है.
ये चीज आप लोग को अगर आप स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने या जब भी पढ़िएगा, फ्रैक्चर क्राइटेरिया देखिएगा स्ट्रेन में, फ्रैक्चर क्राइटेरिया में ब्रिटल फ्रैक्चर क्राइटेरिया उसमें लिखा हुआ है दैट extensional fractures are developed perpendicular to sigma 3 direction. sigma 3 ऐसे है तो आपका फ्रैक्चर ऐसे डेवलप करे, सॉरी ये आपका ऐसे डेवलप करेगा, ऐसे डेवलप, ये सिग्मा 3 के परपेंडिकुलर हुआ ना। अब बताइए ये सिग्मा 3 के ये परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या ये सरफेस है आपकी, ये सरफेस है, ये फ्रैक्चर है। सरफेस और फ्रैक्चर क्या परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? बताइए। हेलो, द पर्सन हु हैज आस्क्ड मी। पैरेलल सर। पैरेलल है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये तो गलत हो गया ना। हाँ सर। आप समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलिए, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं ना? ओके, चलो 12th question. Again this question is from physical geology, some part of sedimentology you can say, that is weathering. Incongruent dissolution. Incongruent dissolution का मतलब होता है hydrolysis. It is another term from hydrolysis. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? KAl, एक एग्जांपल दे रहा हूं, Si3O8 प्लस H2O. H2O आपका ब्रेक करता है H प्लस OH माइनस से, ये H प्लस K को रिप्लेस करेगा, ये OH माइनस इसमें ऐड होगा और ये एक H2SiO4 प्लस क्ले मिनरल बनाएगा. दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस. समझ में आया किसी को कि मैं और क्लीनली इसको समझाऊं? हेलो, आ गया सर। आ गया ना? ये एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिसमें क्ले मिनरल आपका बनता है फ्रॉम फेल्डस्पार. केओलिनाइट बनेगा. दैट क्ले मिनरल इज कॉल्ड केओलिनाइट. सो दैट इज योर थिंग इन हाइड्रोलिसिस एंड इट इज अनदर नेम फॉर incongruent melting. अब पढ़िए स्टेटमेंट, अपने आप समझ में आ जाएगा. Incongruent dissolution occurs when all the constituents of a individual molecule are separated and remain in the solution. सारे मॉलिक्यूल्स की चीजें कहाँ सेपरेट हो रही हैं? खाली पोटेशियम ही तो अलग हो रहा है, H प्लस उसको रिप्लेस कर रहा है, OH माइनस इसमें ऐड हो जा रहा है केओलिनाइट बनाने के लिए. ये देखिए OH माइनस इसमें ऐड हो गया और H2O और ये आपका ऐसे हो गया, खाली K ही तो रिमूव हुआ, बाकी सब तो वैसे के वैसे रह गए. तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना. समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई ना. ओके. तो ड्यूरिंग इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन सम ऑफ द रिलीज्ड आयंस recombine to create new components and secondary mineral. ठीक, सम ऑफ द आयंस देखिए, सम ऑफ द आयंस है. ठीक है भाई, पोटेशियम रिकम्बाइन किया, एल्यूमिनियम मतलब पोटेशियम हटाया, हाइड्रोजन इसमें रिकम्बाइन किया. इसको हम लोग मेटल एब्रेजन, सॉरी एब्रेजन पीएच कहते हैं इसको हम लोग टर्म देते हैं एब्रेजन पीएच. एब्रेजन पीएच क्या होता है? कितना हाइड्रोजन आपका पोटेशियम को रिप्लेस कर रहा है, कितने एक्सटेंट तक रिप्लेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्रेजन पीएच. ओके, तो ये आपका ये चीज एब्रेजन पीएच कहलाती है. ओके, सो ये तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मिनरल कैटायंस आर रिलीज्ड इनटू सॉल्यूशन एंड रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ये भी सही है. कन्वर्जन ऑफ एनहाइड्राइड टू जिप्सम इज हाइड्रेशन. अच्छा, व्हाट इज हाइड्रेशन ये भी समझ लीजिए. एक हाइड्रेशन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग. हाइड्रेशन में सिंपल H2O पूरा ऐड हो जाता है. हाइड्रोलिसिस में H2O ब्रेक करता है H प्लस OH माइनस में, फिर रिप्लेसमेंट वगैरह होता है. इसमें कुछ नहीं होता हाइड्रेशन में. हाइड्रेशन में आपका
CaSO4 जिप्सम सॉरी एनहाइड्राइट होता है, इसमें सिंपल पानी जोड़ दीजिए, पूरा पूरा पानी ऐसे उठा के जोड़ दीजिए, ये आपका जिप्सम बन जाएगा। सिंपल एडिशन ऑफ वाटर, इट इज हाइड्रेशन। ओके, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इंटरलेयर स्पेस मेनली। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ओके, let me see that whether there are some messages or not because I have joined in tab. So okay, let me see if someone is waiting. Okay, okay. I think there are no messages, I guess. Everything is fine. Okay. So, sigma 1 represents the maximum principal compressive stress. Which of the following statements is correct for a normal faulting? Normal faulting में sigma 1 simple Anderson theory, sigma 1 आपका vertical होता है, sigma 3 आपका horizontal होता है, and sigma 2 is passing through the fracture plane. Intersection of the fracture plane से ये आपका sigma 2 निकलता है, that is sigma 2. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल एंडरसन थ्योरी क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल आपने पढ़ी है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक दिस थिंग। ओके, अगेन इट्स स्ट्रक्चरल, इस बार अच्छी पूछी गई, गुड क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। नाउ regarding pure shear, which of the following statements regarding pure shear deformation is correct? Okay, pure shear deformation में what questions are, मतलब what things are being asked? Okay, so for pure shear deformation आपको पता होना चाहिए प्योर shear क्या है और सिंपल shear क्या है और कोएक्सियल क्या है, नॉन कोएक्सियल क्या है। ओके, लेट मी like use notepad again for this. ओके, सिंपल shear क्या है, प्योर shear क्या है, वो क्या है? ओके, सो प्योर shear, सिंपल shear, कोएक्सियल, नॉन कोएक्सियल, irrotational एंड रोटेशनल। मैं थोड़ा तेज तेज लिख रहा हूं बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये एक समझ करिए, ये अपर डेटम है, ये एक लोअर डेटम है, सर्किल इलिप्स में चेंज होता है। प्योर शेयर में क्या होता है, सर्किल इलिप्स में चेंज होता है तो सर्किल ऊपर और नीचे की सरफेस छोड़ के ऐसे इलिप्स में चेंज होता है, यू ऐसे करके। लेकिन सर्किल डायरेक्टली इस स्टेज में, इस स्टेज से इस स्टेज में नहीं आया, वो धीरे धीरे पहले ऐसे एक इलिप्स बनाया होगा, फिर धीरे 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 करके ऐसे इलिप्स बनाया होगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे बनाया होगा, फिर फाइनली एक ये इलिप्स बना दिया होगा। ये स्टेजेस ऑफ डिफॉर्मेशन होते हैं, इसको हम लोग इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन बोलते हैं, फाइनल को हम लोग इस फाइनाइट स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक सीधे एक एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, तो ये जो सर्किल की एक्सिस है और ये जो इलिप्स की एक्सिस है आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, कोई रोटेशन नहीं हुआ है, देयर हैज बीन नो रोटेशन इन दैट, कोई भी इसमें रोटेशन नहीं हुआ है, सो इट इज इररोटेशनल। एंड कोएक्सियल किसको कहते हैं, कोएक्सियल कहते हैं अगर ये जो इनफाइनाइटेसिमल, बहुत गंदा हो गया, अगर ये आपका ये जो सर्किल है और ये जो इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन है, इन दोनों इलिप्स है, इन दोनों की एक्सिस अगर मेंटेन हो रही हैं, इसको हम लोग कोएक्सियल कहते हैं। और मेंटेन होते 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 फाइनाइट स्ट्रेन की भी मेंटेन हो जाए तो ये आपका इररोटेशनल कहलाता है, एंड दिस इज प्योर शेयर। सिंपल शेयर में क्या होता है, सर्किल है, ये डेटम को नहीं छोड़ता, ये ऐसे इलिप्स में कन्वर्ट हो जाता है, यू, इसकी एक्सिस ये रही, फिर से ये इनफाइनाइटेसिमल इलिप्स आप लोग बना लीजिएगा, इसकी एक्सिस ये रही, इसकी एक्सिस ये रही इलिप्स की, यूं एक्सिस अगर आप देखें तो ये रोटेट हो चुकी हैं, द एक्सिस हैव बीन रोटेटेड। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं नॉन कोएक्सियल और रोटेशनल। ओके, अब स्टेटमेंट पे आते हैं।
Orientation of the principal axis of the strain ellipsoid continuously changes during the deformation. The orientation of the principal axis of the strain ellipsoid, क्या ओरिएंटेशन एक्सिस का चेंज हो रहा है? आप लोग बताइए प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या चेंज हो रहा है ओरिएंटेशन एक्सिस का प्योर शेयर में? हेलो, नो। नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तभी मुझे लगेगा समझ में आ रहा है। The principal axis of the strain ellipsoid always coincide with the principal axis of the strain. ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सिस कोइंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर। ये सही है, मिल गया आपको आंसर। और भी स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। Orientation of the principal axis of the strain ellipsoid does not coincide with the orientation of the principal axis of the strain. ये तो रिवर्स स्टेटमेंट है, गलत है। Having no stretching और shortening of lines, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेचिंग और शॉर्टनिंग होती है, दो लाइंस ही खाली ऐसी होती है जिसमें स्ट्रेचिंग और शॉर्टनिंग नहीं होती। तो वो बी वाला स्टेटमेंट तो हमको ऊपर मिल ही चुका है, तो इट इज करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस ट्रांजैक्टेड क्लीवेज। ट्रांजैक्टेड क्लीवेज ऐसा जानिए, जब आप क्लीवेज पढ़ेंगे तो ये अगर ये फोल्ड है, फोल्डेड सरफेस है, तो फोल्डेड सरफेस के एक्सियल प्लेन के पैरेलल ही क्लीवेज डेवलप होती हैं। द क्लीवेज आर डेवलप पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस ओनली, but transacted cleavage is a special type of cleavage because of the change in the competencies of the difference in the competencies of the rock. स्ट्रेटा की ये जो ये स्ट्रेटा है, ये स्ट्रेटा है, ये स्ट्रेटा है, ये स्ट्रेटा है, इसकी कॉम्पिटेंस में डिफरेंस है। इसकी वजह से ही जो क्लीवेज है, ये देखिए, ये आपका एक्सियल सरफेस, ये आपका एक्सियल सरफेस है। दिस इज योर एक्सियल सरफेस। ये आई एम यूजिंग अनदर कलर एंड दिस इज योर क्लीवेज। ये देखिए, ये क्लीवेज है आपकी, ये क्लीवेज है, ये क्लीवेज है, ये क्लीवेज है, ये क्लीवेज है। ये क्लीवेज एक्सियल सरफेस से एंगल पे। सो ट्रांजैक्शन क्लीवेज फॉर्म, सो लेट्स स्टडी द स्टेटमेंट। Transected cleavage forms parallel to the axial plane of the fold. This statement 1 is wrong. जहां जहां 1 दिया है उसको काट दीजिए, बस आंसर मिल गया आपको। 2 and 3. Transactant cleavage forms when folding occurs in a layer oriented oblique to all the principal axis of the strain. या transacted cleavage पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। Transacted cleavage forms concurrently with the associated fold. Yes, definitely it is formed simultaneously with the fold itself. फोल्ड के साथ ही साथ ये क्लीवेज बनती हैं ड्यू टू कॉम्पिटेंसी डिफरेंस, कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रास्ट। ओके, now coming to this type of this is again a question which is asked from foliation and lineation. Type of lineation found in unmetamorphosed or very low grade metasedimentary rocks formed by intersection of compaction cleavage. See, this thing when it gets compacted, जब हम इस पे कॉम्पैक्शन लगाते हैं, ये cleavages are developed. Now again this thing, when you will study structural, you have to remember this thing. Cleavages are formed perpendicular to maximum stress direction. Stress direction मतलब सिग्मा 1 के परपेंडिकुलर क्लीवेज बनती है। अब आप कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे करके कॉम्पैक्शन लगा रहे हैं, तो क्लीवेज इसके परपेंडिकुलर बनेगी इसके। दिस इज सिग्मा 1। अब आपने सिग्मा 1, अब आपने दूसरे के, दिस इज कॉम्पैक्शन क्लीवेज, अब आपने दूसरे स्टेज में सिग्मा 1 की डायरेक्शन चेंज कर दी। नाउ दिस क्लीवेज विल फॉर्म ये सिग्मा 1 के परपेंडिकुलर। दिस इज सिग्मा 1। पहली क्लीवेज ये थी, दूसरी क्लीवेज ये है, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड पेंसिल स्ट्रक्चर। ये समझ में आया आप लोग को कि और डिटेल में समझाऊं मैं? हेलो, समझ में आया? Yes. Okay, now coming to this highly, okay,
A highly competent layer embedded in a thick incompetent rock. Now this question is being asked from mechanism of folding. Mechanism of folding से ये क्वेश्चन पूछा गया है. एक स्ट्रेट मतलब एक ऐसा करके सेटअप है जिसमें ये एक कॉम्पिटेंट रॉक इनकॉम्पिटेंट रॉक है. अनदर कलर से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ. ओके सॉरी या ये कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट रॉक है और ये कॉम्पिटेंट रॉक है. दिस इज दिस ब्लैक वन इट इज इनकॉम्पिटेंट. दिस रेड वन इट इज कॉम्पिटेंट. ये एक सेटअप है, एक सेटअप क्रिएट किया है. अब इसमें आप जब लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग लगाते हैं दैट इज बकलिंग, तो ये जो इस वाली अब ये जो इनकॉम्पिटेंट लेयर है इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये जो थोड़ा सा मतलब आई थिंक इसको ब्लैक से करना चाहिए. इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी. अगर ये L है L0 है तो ये L हो जाएगा एंड L वुड बी लेस देन L0. लेंथ कम हो जाएगी और ये जो कॉम्पिटेंट लेयर है इसमें आपका फोल्ड डेवलप हो जाएगा यूं. दैट इज योर फोल्ड. और ये जो आइसोलेटेड फोल्ड होता है इसको हम लोग पिगमेटिक फोल्ड कहते हैं. These are isolated folds which are developed. ये आगे पीछे से कोई फोल्ड नहीं डेवलप होता. ओके एक मतलब एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट लेयर में ही ये डेवलप होता है. समझ में आया ये चीज आप लोग को? हेलो हेलो Yes, sir. देखिए Sir. इसमें लिखी हाँ बताइए. यस Can you please explain cuspate lobate fold? What is that? cuspate and lobate fold. Okay, what the cuspate and lobate fold इसमें ये होता है ना कि like they are also developed in different competencies like different competence layering which have different layers which have different competencies. इसकी competency अंतर होगा लेकिन इसमें जो है क्या कहते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रास्ट होता है वो थोड़ा सा लो होता है. द कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रास्ट इसमें थोड़ा सा लो होता है इन कस्पेट एंड लोबेट फोल्ड. इसलिए ये ऐसे कुछ टाइप के फोल्ड्स बनते हैं यूं ऐसे करके. इसमें यहाँ पे आपकी इनकॉम्पिटेंट स्ट्रेटा होती है और यहाँ पे आपकी कॉम्पिटेंट स्ट्रेटा होती है. ये कस्पेट होता है, ये लोबेट होता है. मतलब फेसिंग जो होगा वो हमेशा इनकॉम्पिटेंट होगा और जो छुपा रहा होगा अपनी कॉम्पिटेंसी इंसान छुपाता है तो कॉम्पिटेंसी छुपाता है वो लोबेट होता है. जो इनकॉम्पिटेंसी दिखाता है वो कस्पेट होता है. समझ में आया? Okay, Hello? sir. Thank you. ओके हाँ ये मैंने तरीका याद किया था अपना इस तरीके से. बट इसमें जो कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रास्ट होता है अच्छा ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे. ओके मैंने ध्यान नहीं दिया. Cuspate lobate folds have competency contrast is low. हाँ देखिए competency contrast इसमें low होता है. Okay. So I think I should drink water. Please give me a moment. Okay, like we'll begin this after 2 minutes. Let me drink some water. ओके सो अब पूरा पेपर तो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज टाइम ज्यादा है. we'll discuss like in 2 or 3 slots. बट आज मैं मेजोरिटी ऑफ दी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा. ओके
So again, this is a theoretical question यार. Now I'm going to increase the pace. You should understand this. ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने भी ये चीज पहली बार सुनी है एक्चुअली, तो मुझे भी कोई आइडिया खास इसके बारे में है नहीं, बट इट इज अ थियोरेटिकल थिंग. ये उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा वहां से अपना ये थ्योरी से. ओके, और कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लीजिएगा उसमें. Now consider this. Okay, this is a question which has been asked from Mohr circle. अब इसमें देखिए सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा 2 सिग्मा 3 0 है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन 0, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल टू 0. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनी एक्सियल स्ट्रेट. हाइड्रोस्टैटिक में तीनों बराबर होते हैं, बाई एक्सियल में दो नॉन ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब बाई एक्सियल का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और ट्राई एक्सियल में तो तीनों नॉन जीरो होने चाहिए. ट्राई एक्सियल में दो मोहर सर्किल चाहिए होते हैं आपको डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस. समझ में आया कि नहीं आया? ओके, दिस इज बाई, दिस इज ट्राई. समझ में आया? ओके, Yes, sir. ओके, चलो. नाउ ब्रिटल shear zones are also known as frictional shear zones. डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, यहाँ के अलॉन्ग खूब सारी क्रशिंग और ये सब चीजें होती हैं. सो इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल shear zones. It is good, like the statement is definitely correct. Now, the brittle shear zones are generally confined up to the uppermost 10 to 15 kilometer of the earth crust. This statement is also correct. ये 10 से 15 किलोमीटर में होते हैं, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर के बाद 15 से 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक आपका ब्रिटल डक्टाइल होता है, एंड देन फिर ब्रिटल ग्रेटर देन 30 किलोमीटर्स वी हैव दिस डक्टाइल shear zone. Okay, so brittle ductile and this is ductile shear zone. ये इसकी तीनों की लेयरिंग होती है. तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है. Now shear fractures have relative movement perpendicular to the fracture wall. Now this is wrong. shear fractures जो होते हैं, shear fractures में ये fault is a shear fracture, joint is an extensional fracture. फॉल्ट में जो मूवमेंट होता है वो इसी फ्रैक्चर प्लेन के अलोंग ही होता है, और फ्रैक्चर में जैसे मैंने कहा था सिग्मा 3 के परपेंडिकुलर क्रैक्स डेवलप होते हैं. जॉइंट इज एन एक्सटेंशनल फ्रैक्चर, फॉल्ट इज अ shear फ्रैक्चर. ये आपका एक फ्रैक्चर प्लेन डेवलप है, इसी फ्रैक्चर प्लेन के अलोंग मूवमेंट होगा, चाहे ऊपर नीचे हो चाहे नीचे ऊपर. ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये चीज पता है आप लोग को? हेलो, डू यू नो दिस थिंग? shear fractures, fault is a shear fracture. ये फॉल्ट प्लेन है, ये नीचे ये ऊपर, ये चीज पता है? हेलो, No, sir. अच्छा, you don't know. Okay, we'll study this thing, this shear concept of shear fracture and like extensional fractures. Fault एक shear fracture है, ये एक fault plane है. Okay, ये एक fault plane डेवलप है, 3D में इसको सोचिए, ये एक fault plane है, और इसी fault plane के along ही आपका मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, तो ये fault plane भी तो एक fault भी तो एक फ्रैक्चर ही होता है, और क्या होता है? तो उसको हम लोग shear fracture कहते हैं. दिस इज कॉल्ड shear fracture. ओके, ये स्ट्रक्चरल में आप लोग को पढ़ना चाहिए, ये पढ़ा, शायद अगर पढ़ा नहीं होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इट इज अ shear fracture. ओके, देखो, shear fractures exhibit movement parallel to the fracture plane, not perpendicular. Normal and reverse fault involve dip slip motion where strike slip faults have lateral movement. These all are shear fractures. So 1 is correct, 2 is correct, and 4 will be correct. In brittle shear zones, breaking of the rock along the macro scale fracture planes or zones. Okay, तो 4 तो correct है, breaking of the rock, crushing of the rock तो होता ही उसमें, और वैसे भी 3 अपना incorrect है, तो 3 वाला ऑप्शन incorrect हो गया. 1 और 2 सही है, तो 1 2, और ये 4 वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, ओके, समझ में आया? Yes, sir. Okay, now we come to as this is again a theoretical question. What is phylonite? Phylonite would be a mica rich myelinite. Phyllosilicates, mica rich myelinite.
want to join right now. Okay, it's a mica-rich myeloid and protomyeloid. What is protomyeloid? Protomyeloid, it is like yes, 10 to 50% it has matrix content. मतलब it is very fine grained myeloid which has like difference between, like there are different types of myeloid. एक पूरी myeloid की सीरीज होती है. उस myeloid की सीरीज को अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा there are different types of myeloid और 10 to 50% इसमें आपका प्रोटोमाइलोनाइट में मैट्रिक्स कंटेंट होता है. सूडोटेकेलाइट क्या होता है? सूडोटेकेलाइट में एक ग्लासी रॉक होती है, एक फ्रैक्चर प्लेन है, यहाँ पे खूब सारा फ्रिक्शनल की वजह से यहाँ पे सपोज करो मेल्टिंग हुई, एक ऐसे ऐसे करके क्रैक डेवलप है, ये मेल्ट गया इस क्रैक में और तुरंत ही जाके सॉलिडिफाई कर गया और ये ग्लासी रॉक बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका सूडोटेकेलाइट. मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये एक फ्रैक्चरल प्लेन है, यहाँ पे फ्रैक्चरल प्लेन में मूविंग मतलब मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे खूब सारा मूवमेंट हो रहा है. एक क्रैक डेवलप है, क्रैक डेवलप होने के बाद यहाँ पे आपका ये मेल्टिंग हुई, मेल्टिंग यहाँ पे क्रैक में गई और यहाँ पे सॉलिडिफाई कर गई. इसको हम लोग सूडोटेकेलाइट बोलते हैं. तो सूडोटेकेलाइट इज cohesive and it is glassy. And what is gauge, fault fascia, it is related to brittle faulting. Okay, pseudotekelite is a glassy faulty rock formed by frictional melting due to seismic slip making it cohesive and glassy. ठीक है, चलो. It is a very simple question. Now this question, it is from map. These are the different map symbols. You have to remember it. इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें समझाने वाला कोई चीज नहीं है. These are the map questions which you have to remember it. Similar thing goes for this question also. It is a symbol based question. You have to remember this outcrop pattern. There is nothing to explain in this kind of things. There are outcrop patterns and you have to remember this outcrop pattern. Now this is a very good question. मतलब it is very good question. किसी ने किया है आप में से ये क्वेश्चन? प्लीज मेरे को बताइए, किसी ने किया है ये? Has anyone done this question? हेलो, Yes, sir. किसने किया? कौन आपका नाम? Dhrutikam. प्लीज पार्डन. Dhrutikam. ओके, सो आपने क्या इसमें ऑप्शन लगाया? Option B, only 4. हाँ, अच्छा, क्या मतलब आप बता सकते हैं, आप समझा सकते हैं क्यों आपने ऐसा किया? Yes, sir. हाँ बताइए, बताइए ऐसे ही बताइए सर. मतलब बी वेरी फ्रैंक यार, आई एम योर फ्रेंड, बी वेरी फ्रैंक. कैसे किया बताइए. हाँ I'm thinking. Just a second, please. हाँ, प्लीज टेक योर टाइम. तब तक हम नीचे वाला डिस्कस करते हैं. हाँ बताइए. यस, हाँ बताइए. Fold axis passing through origin. That means, and it's a straight line and passing through the origin. So, सो चलिए मैं तो- पूछता हूँ आपसे, मैं पूछता हूँ. हाँ, बोलिए. पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा? एंटीफॉर्म क्यों नहीं है ये? एंटीफॉर्म क्यों नहीं है? व्हाई इज इट नॉट एंटीफॉर्म? ये एंटीफॉर्म क्यों नहीं है? Yes, so actually I'm forgetting. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ये एंटीफॉर्म क्यों नहीं है. एंटीफॉर्म आप स्टीरियोनेट से पता नहीं कर सकते. ओके, इसमें लिम्स yeah. वगैरह का डेटा प्लॉट करना पड़ता है, ऐसे नहीं पता होता. एंटीफॉर्म आप ऐसे करके आउटक्रॉप पैटर्न होता है, यूं ऐसे आउटक्रॉप पैटर्न होता है. फोल्ड एक्सिस अगर ऐसे जा रही है तो इट इज एंटीफॉर्म. फोल्ड एक्सिस अगर ऐसे जा रही है क्लोजर की अवे और क्लोजर की तरफ, दिस इज एंटी, दिस इज सिन. एक्सियल प्लेन और फोल्ड एक्सिस के डेटा से आप एंटीफॉर्म पता नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, हेलो, समझ में आया आपको? Yes, sir. इंक्लाइन फोल्ड क्या होता है? व्हाट इज इंक्लाइन? अच्छा, इंक्लाइन फोल्ड क्यों नहीं है?
इंक्लाइन फोल्ड सुनिए। So in inclined fold, the axial plane, that the deep of the axial plane, that it represents in stereonet in great circles, but it is in straight lines. ब्यूटीफुल लाइक आई एम सेइंग दैट ये इंक्लाइंड होगा ना, दिस इज एन Yes, इंक्लाइंड sir. फोल्ड। हाँ, exactly. Those of you who are not understanding this, you have to study the stereonet in a detailed manner. ये axial plane, ये जो line है, plane is represented by a line, so this is axial plane. And fold axis, line is represented by a dot, this is fold axis. अगर आपकी एक्सियल प्लेन एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब आपका जो एक्सियल, लेट मी यूज द नोटपैड, अगर आपका एक्सियल प्लेन स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे भी है, एक्सियल प्लेन अगर ये लाइन सब स्ट्रेट्स है ना, तो एक्सियल प्लेन 90 डिग्री है, माने वर्टिकल है एक्सियल प्लेन। अगर आपका एक्सियल प्लेन थोड़ा सा कर्व आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, तो वो इंक्लाइंड है। अलग अलग बनाता हूं मैं, एक 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 छोटा सा यू बनाया, ये ऐसे है, ये इसका डिप अमाउंट हो जाएगा, ये आपका ऐसे है यूं, ये आपका डिप अमाउंट हो जाएगा, ये आपका मतलब सपोज करिए ये, तो खैर क्या ही हो गया, दो ही हो गए, आगे क्या, हाँ ठीक है, तो ये सारे आपके इंक्लाइंड है। और अगर आपका ये वर्टिकल है, मींस स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक्सियल प्लेन आपका वर्टिकल है। फोल्ड एक्सिस अगर यहाँ पे है तो प्लंजिंग है, यहाँ पे भी है प्लंजिंग है, यहाँ पे अगर फोल्ड एक्सिस आ गई एकदम सेंटर पे 90 डिग्री पे, इट इज योर वर्टिकल। let me admit it, someone is joining, इसमें अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। ओके, सो ये वर्टिकल है, ये आपकी फोल्ड एक्सिस वर्टिकल है, सेंटर पे रहती है फोल्ड एक्सिस तो वर्टिकल होती है, पेरिफेरी पे रहती है तो नॉन प्लंजिंग होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और बीच में कहीं पे भी फोल्ड एक्सिस रहती है तो ये प्लंजिंग होती है, प्लंजिंग फोल्ड। ओके, समझ में आया आप लोग को कि मैं और समझाऊं इसमें, क्योंकि इसके लिए तो पूरा डिटेल एक क्लास चाहिए होगी स्टीरियोनेट की। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, हेलो, sir. हाँ, किसी को नहीं समझ में, अच्छा किसी को नहीं समझ में आया वो बताइए, मैं समझाने को तैयार हूँ। चलिए कोई बताइए जिसको ना समझ में आया हो। रिपीट करूं मैं? Yes, sir. Please repeat. अच्छा रिपीट, आपका नाम, योर नेम? Sir, Richa. रिचा, रिचा। Okay. सो रिचा, आपने Yes, ये sir. पेपर दिया है, नहीं सर, पेपर नहीं दिया मैंने। आपने स्ट्रक्चरल पढ़ी है, स्टीरियोनेट प्रोजेक्शंस पढ़े हैं आपने? नहीं सर, अच्छे से तो नहीं आपको नहीं पढ़ा। समझ में, रिचा आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये स्टीरियोनेट में ना पूरा आपको चीज समझनी पड़ेगी। आप बैचलर्स में हैं अभी अपने? Yes, sir. हाँ, तो रिचा पॉइंट इज दैट ना कि मैं अभी आपको ऊपर ऊपर समझा दूंगा, लेकिन फिर उससे वो बात नहीं बनेगी। अगर Okay, किसी sir, ने good. स्टीरियोनेट पढ़ा है, उसको ये चीज समझ में ना आ रही हो तो प्लीज बताए मेरे को। अगर किसी ने स्टीरियोनेट पढ़ा है, उसको ये चीज ना समझ में आ रही हो जो मैं बोल रहा हूँ, बट फॉर रिचा, क्योंकि आप कहना चाह रही है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। देखिए रिचा, हम लोग एक्सियल प्लेन और फोल्ड एक्सिस प्लॉट करते हैं, लिम्स उसकी क्या कहते हैं, फोल्ड की। आपको एक्सियल प्लेन और फोल्ड एक्सिस पता है क्या होती हैं रिचा? एक्सियल प्लेन और फोल्ड एक्सिस क्या होती हैं आपको पता है? रिचा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप पे? प्लीज इंटरैक्ट विद मी, नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा। फोल्ड एक्सिस और एक्सियल प्लेन पता है आपको? Richa, are you there or you have left the class?
I think we should move forward. Richa, I'll explain to you afterwards, okay, when we'll study structural. Chalo, this question 25. Which one of the following statements is not correct? Hexagonal crystal, like, okay, these are the simple things which are being asked in the like simple crystallography things. So इसमें ये जो D ऑप्शन होगा हेक्सागोनल में, ये देखिए तीनों एक्सिस जो होती हैं हॉरिजॉन्टल वाली वो बराबर होती हैं और वर्टिकल के बराबर ये नहीं होती हैं, मतलब वर्टिकल वाली थोड़ी ज्यादा होती है या कम होती है, बट ये तीनों हॉरिजॉन्टल बराबर होती हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ओके। सो आई थिंक दिस डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने किया है? ये क्वेश्चन किसी ने किया है? किसी ने किया है ये क्वेश्चन एचएम सिंबल का? हेलो, Yes, sir. कौन आपका नाम? I am Lincoln, sir. लिंकन, ओके। सो लिंकन, आपने ये क्वेश्चन कैसे किया? Sir, it is mentioned that it is tetragonal, I think. अच्छा, तो आपको याद था ये? Yes, sir. I remembered that it is from tetragonal. Oh. YM2 by. तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ते हैं कि आप ऐसे भी निकाल लेते हैं? सर वो फॉर्मूला ऐसा करके थोड़ा बहुत याद करें तो क्या फॉर्मूला है? कि एक्सिस 1 2 2 ऐसा करके 5 एक्सिस रहेगा। I'll write the मैं समझ गया, ये आपने सही समझा। I understood that, मैंने भी ऐसे ही याद किया। This is the formula CAD 1 2 2 4 by m 2 by m 2 by m। The beauty of this formula is आप ये तक बता सकते हैं कि मिरर प्लेन परपेंडिकुलर है कि हॉरिजॉन्टल है, सॉरी, मिरर प्लेन वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, कितने मिरर प्लेन वर्टिकल हैं, कितने मिरर प्लेन हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। वन एक्स, इसमें देखिए मैं बताता हूं मैं कैसे निकाल रहा हूं। वन एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, 4 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री एंड 5 मिरर प्लेन्स। इसमें से एक जो आपका मिरर प्लेन है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, बाकी 4 मिरर प्लेन आपके वर्टिकल है। एक एक्सिस 4 फोल्ड सिमेट्री की आपकी वर्टिकल है और 4 एक्सिस 2 फोल्ड सिमेट्री की आपकी हॉरिजॉन्टल है। चाहे तो कोई भी बुक खोल के देख लीजिए, यही पूरी सिमेट्री टेट्रागोनल की नॉर्मल क्लास की है। ये है कि नहीं है? हेलो, यस सर। हाँ, ये कैसे करते हैं ये यार, इसकी तो पूरी एक क्लास होनी चाहिए, मैं समझाऊंगा इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं। बट ये है CAD 1 2 2 इसका फॉर्मूला होता है। C एक की आपकी वर्टिकल एक्सिस हो गई टेट्रागोनल सिस्टम में, A आपकी 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई A1 A2 और D आपका डायगोनल हो गया। अब 1 2 2 ये 4 by m इधर यहाँ पे लिखा 4 by m 2 by m 2 by m। 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, 2 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री A एक्सिस के अलोंग, A और B एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। ये देखिए, हाँ ये डायग्राम बना है, ये देखिए ये वर्टिकल एक्सिस है आपकी, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, सॉरी वर्टिकल नहीं, ये एक सेकेंड, हाँ ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ये आपकी ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है A2, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है A1 और ये 2 डायगोनल्स हैं और वर्टिकल आपका पीछे है, ये वर्टिकल, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में बताता हूँ कहाँ है, ये देखिए ये C जहाँ पे लिखा है, मतलब आपकी तरफ आ रही है ये वर्टिकल एक्सिस, ये पीछे से यूं आपकी तरफ आ रही है, इमेजिन करिए, ठीक है। और ये 2 आपकी हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लॉट कर, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग इस चीज को प्लॉट कर रहे हैं ना, तो ये वर्टिकल आपके तरफ आएगी। दिस इज C एक्सिस, दिस इज योर 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 2 फोल्ड सिमेट्री है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग 4 फोल्ड सिमेट्री है, 2 डायगोनल्स के अलोंग भी 2 फोल्ड सिमेट्री। ओके, अब इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग HM सिंबल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड? हेलो, okay. Now this is a question which is asked that ग्लोकोफेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए दैट ग्लोकोफेन में ये फॉर्मूला होता है इसका।
It is a sodium rich amphibole. Again, ये trioctahedral layer silicate है. It is again a direct question which is being asked कि ये trioctahedral, एक second. Wait. अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं and they are like disturbing the class. Yes. So okay. So ये हो गया. तो ये ट्राईऑक्टाहेड्रल एक ये डायग्राम है, आपको देखना चाहिए, ये डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन है. इसमें ऑल दी 3 ऑक्टाहेड्रल विद इन ईच हेक्सागोनल रिंग. ये देखिए, ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल, ये देखिए, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल लेयर है. मैं बना देता हूँ इसमें. ये आपकी ऑक्टाहेड्रल लेयर है, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल लेयर. तो इसमें all the octahedral layers, they are occupied by ions. So this first option would be correct. Okay, I'm not diving into details because we are running short of time. It is a theoretical question, so we are running short of time, so we'll try to okay. 28 now, just 29. It is again elite. Yeah, elite is an essential fine-grained muscovite with some of the potash leached out and replaced by weakly bound water. Okay, so elite, yeah, it is a theory question. It is a dominant clay mineral. It is potash-rich mineral. It is formed because of the weathering of this potassium feldspar, K feldspar or K-rich minerals, muscovite as well. So I'm sorry, muscovite nahi hoga. Muscovite, though, it is like a mica, but yeah, my muscovite can result in the formation of this, but primarily it is feldspar. By weathering of silicates through alteration of other clay minerals and during the degradation of, yeah, it is written, देखो ये लिखा भी हुआ है, it is written degradation of muscovite. So muscovite से भी degrade करके ये elite बनता ही बनता है. So vermiculite, it is formed, it is a clay mineral that forms when biotite is altered by weathering. Yes, it is correct. Biotite की weathering से vermiculite आपका बनता है. मतलब it is dominant in basaltic rock. Elite will be dominant in granitic rocks. Okay. Hello. Done. Okay. Yes, sir. So an element or compound that can exist in more than one crystallographic structures, इसमें तो कुछ doubt होना नहीं चाहिए. It is polymorph. Phenomena is called polymorphism. Now, what is coupled substitution? Coupled substitution में क्या होता है? There are different types of substitution. Interstitial substitution, coupled substitution, simple substitution. ऐसे कई सारे होते हैं. हम लोग जब solid solution पढ़ेंगे, I wish कि आप लोग का मेंस प्री क्लियर हो जाए, तो मेंस में जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वी स्टडी अबाउट इट. कपल्ड सब्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है. होता क्या है कि ये दो कैटायंस आपस में चार्ज को बैलेंस करते हैं. यहाँ भी देखिए 3 और 2 5 चार्ज है, यहाँ पे 4 और 1 5 चार्ज है. चार्ज बैलेंस होता है. Al, अगर Al रिप्लेस हो रहा है, Al और कैल्शियम को सिलिकल और एल्यूमिनियम रिप्लेस करेंगे. ये कैरेक्टरिस्टिक चीज होती है सॉलिड सोल्यूशन की. सॉलिड सोल्यूशन की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. ओके, सो ये कौन सा सॉलिड सोल्यूशन की? NaCa वाले सॉलिड सोल्यूशन की. मींस प्रीजियोक्लेस फेल्सपार वाले सॉलिड सोल्यूशन की ये कैरेक्टरिस्टिक चीज होती है. गार्नेट में सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है, गार्नेट में कपल्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है. सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. इसमें आप लोगों में से किसी ने ए भी मारा है क्या? कोई है जिसने ए मारा है इसमें? कुछ सोच के क्या मारा है आप लोगों ने? मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने क्या मारा है? ये मारा है? सी मारा है? सी मारा है कि नहीं मारा है? Yes, sir. C मारा. बस, बहुत बढ़िया. Now this question, I'll again explain this thing because it will require a lot of time, lot of concepts. We are running out of time. अभी जल्दी जल्दी करते हैं. Question note कर लीजिए. I'll explain this thing after that because it is thermodynamics complete. In silicate minerals में ये जो डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे गार्नेट हो,
चाहे आपका वो क्या पायरोक्सिन हो, चाहे एम्फीबोल हो, चाहे ओलिवीन हो, सब में जो है आपका ऑक्टाहीड्रल कोऑर्डिनेशन में होते हैं। ये बहुत डाउट होता है लोगों को, ऑक्टाहीड्रल समझते हैं तो ऑक्टाहीड्रल माने ये लोग समझते हैं कि 8 फोल्ड होता है। ऑक्टाहीड्रल 8 फोल्ड नहीं होता है। ऑक्टाहीड्रल या ऑक्टाहीड्रल कोऑर्डिनेशन, ऑक्टाहीड्रल आपका 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन होता है। इट इज अ 6 फोल्ड, दिस इज ऑक्टाहीड्रल कोऑर्डिनेशन। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब जिप्सम में 100, कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो, प्लीज, मैं आगे तेज तेज बढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछें। कोई दिक्कत लग रही है किसी को, प्लीज मेरे को बीच में रोक दीजिएगा। कोई दिक्कत लग रही है? हेलो हेलो, No, sir. चलो ठीक है, आई एम गोइंग मूविंग अहेड। तो जिप्सम 100 प्लेन में इट शोज कैरेक्टरिस्टिक स्वॉलोटेल ट्विनिंग। ये ट्विनिंग आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्वॉलोटेल ट्विनिंग दिखाता है इसमें। इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड ट्विन प्लेन इसमें ये लिखा हुआ है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, इसमें मुझे कुछ समझाने की ऐसी जरूरत नहीं है। अगेन दिस क्वाड्स अंडर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर में आपका हाई प्रेशर डेवलप्स अ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। और अगर टेम्परेचर में होता है, अगर हाई टेम्परेचर में चार्ज डेवलप हो जाता है, इट इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म में कोई प्रेशर से रिलेटेड चीज नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका क्या बोलते हैं, magnetism. Okay, so flowing of current develops charge, it is called magnetism. Because of pressure, when it is developed charge, it is called piezoelectricity. When temperature charge is developed, it is called pyroelectricity. Okay, understood? Hello? Yes, sir. Okay, this crankshaft like chain, it is a very beautiful question, again asked from this mineralogy part, Green's book. So it is a very good question. And run and it and this crankshaft like chains that run parallel, sorry for the glitch guys. Yeah, this crankshaft like chains that run parallel to a crystallographic axis is a common feature of feldspar. ये crankshaft होता है, इसमें TOT टेट्राहीड्रल होता है, TOT टेट्राहीड्रल ऑक्टाहीड्रल कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपका ये क्रैंक शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेल्डस्पार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ओके, नाउ दिस 37 किसी ने किया है? 37 किसी ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? हेलो, 37 अटेम्प्ट किया है? हेलो, am I audible? 37 अटेम्प्ट किया है किसी ने? नहीं किया है? कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ये एक नियत सा क्वेश्चन है, इसमें रोल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेल्ट पे क्या होता है, इसका असर, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीजें होती हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जब रोल की हम बात करते हैं कि वाटर रिएक्ट्स विद दी ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ब्रिजिंग मतलब सिलिकेट स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन एटम आपका ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, और ये शेयर नहीं हो रहा है, दिस इज नॉन ब्रिजिंग। तो जो ऑक्सीजन एटम शेयर होता है उसको ब्रिजिंग कहते हैं, जो नहीं होता है वो नहीं, उसको नॉन ब्रिजिंग कहते हैं। तो वाटर रिएक्ट्स विद द ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रेक द सिलिकेट नेटवर्क। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और तभी जो है वाटर सिलिकेट नेटवर्क को ब्रेक करता है, इसीलिए जो है पिग्मेटाइट में हमको जो पिग्मेटाइट रॉक होती है, इसमें हमको लार्जर क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। Water is more soluble in highly polymerized granitic melts. जितना ज्यादा आपका
ब्रिजिंग ऑक्सीजन होगा, मतलब जितना ज्यादा जो है ऑक्सीजन शेयर्ड होगा। अगर आपने सिलिकेट स्ट्रक्चर पढ़ा हो उसमें आपने देखा होगा कि सिलिकेट स्ट्रक्चर में फ्रॉम ऑर्थोसिलिकेट टू टेक्टोसिलिकेट सारे ऑक्सीजन यहाँ पे टेक्टोसिलिकेट में शेयर होते हैं, और ये जो पहला वाला होता है ओलिवीन वाला ऑर्थोसिलिकेट्स, उसमें कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होता है। तो जितना ज्यादा जो है आपका ब्रिजिंग ऑक्सीजन मिलेगा वाटर को, जितना ज्यादा वो वाटर को ब्रिजिंग ऑक्सीजन मिलेगा, उतना वो उसको तोड़ तोड़ के अपने आप को डिसॉल्व करेगा मेल्ट। और मेल्ट में जैसे ही डिसॉल्व करेगा उसमें फ्लूइडिटी बढ़ा देगा, आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे और बड़े बड़े क्रिस्टल बनाएंगे, इसीलिए पिग्मेटाइट में बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एसिडिक मेल्ट होती है और वाटर उसमें ब्रेक करता है। ये बहुत डिटेल एस्पेक्ट है। So this statement 1 is correct, statement 2 is correct, and again the addition of water in silicate melts decreases the temperature of crystallization. Definitely temperature of crystallization को decrease करता है, तभी जो है बड़े बड़े crystals ऐसे बनते हैं। And decreasing water pressure causes melting to occur at progressively lower temperature. Now this statement is wrong. लोअर टेम्परेचर पे नहीं होगा, हायर वाटर प्रेशर पे हायर टेम्परेचर पे मेल्टिंग होगी। अंडरस्टूड? किसी को डाउट है इसमें? हेलो सर, प्लीज एक्सप्लेन डी अगेन। कौन सा पॉइंट? डी पॉइंट सर। डी पॉइंट, या सो दिस डी पॉइंट सेज दैट, ये मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। Decreasing water pressure causes melting to occur at progressively lower temperature. आपके घर में प्रेशर कुकर है? प्रेशर कुकर? yes. आप प्रेशर कुकर में खाली दाल डालिए, ठीक है? दाल डाला आपने, दाल बनती है क्या? बनती है सर, डाल दिया मैंने। अरे नहीं, बांधे नहीं, खाली दाल बनती है क्या बिना पानी के? अच्छा, ना पानी के साथ बनती। पानी के साथ बनती है ना? क्यों पानी के साथ बनती है? दाल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो दाल के मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आप जब उसमें पानी डालते हैं हाई प्रेशर पे, तो पानी की वजह से जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है प्रेशर की वजह से, और तब आपकी दाल गल जाती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग वाटर प्रेशर कॉजेज मेल्टिंग टू अकर एट प्रोग्रेसिवली लोअर टेम्परेचर। वाटर प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है आपका, मतलब प्रेशर अगर आपका वाटर का कम हो रहा है, तो मेल्टिंग लोअर टेम्परेचर पे कैसे होगी? वो तो हायर टेम्परेचर पे होगी ना। राइट सर। भैया अगर आपने दाल डाला आपने, और अगर पानी नहीं है उसमें, मतलब पानी का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर तो कम हो गया, तो दाल काली गलेगी क्या आपकी? आप समझिए, आपकी दाल गलेगी? नहीं गलेगी सर। दाल गलने के लिए आपने क्या किया? पानी डाला सर। देखिए मैं समझाता हूं। देखिए ये आपका एक प्रेशर कुकर है, ठीक, यहां से आप उसको फायर दे रहे हैं, ये दिया फायर आपने, इसमें खाली दाल है, ये दाल है। तो इस सिस्टम में अब हम साइंटिफिकली बात करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दाल होगा, ठीक, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है? हेलो? नहीं है। तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है? ज्यादा है ना, क्योंकि मेल्टिंग दाल नहीं गल रही है ना। दाल गलना मतलब क्या? मेल्ट होना। दाल नहीं गल रही है ना। यस सर। आपने पानी डाला, खूब सारा पानी डाला, जैसे जैसे ज्यादा पानी डालते जाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब ये दाल क्या होगी? गल जाएगी, है ना। yes. दाल गल गई मतलब क्या? दाल मेल्ट कर गई। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? दाल का कम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर समझाता हूं मैं। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए आप। डिक्रीजिंग वाटर प्रेशर
causes melting to occur at progressively lower temperature. ये आपको इस स्टेटमेंट से लग रहा है देख के? वाटर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग हाई टेम्परेचर पे हो रही है कि लो टेम्परेचर पे हो रही है, आप बताइए। हाई पे हो रही है सर। हाई पे हो रही है। दाल बिना पानी के गल सकती है? नहीं हो सकती सर। बस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और किसी को डाउट है इस स्टेटमेंट में? हेलो, और किसी को डाउट है? अब देखिए अब ये साइंटिफिकली सर माफी चाहता हूँ पर सर वो जो मेरा एक अलग साइड सा क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि मैग्मा राइज होता है तो वो प्रेशर कम होने की वजह से वो मेल्टिंग कर जाता है कभी कभी, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ना सर? दैट इज एडियाबेटिक डीकम्प्रेशन। अब आप एडियाबेटिक डीकम्प्रेशन पे आ गए। आप टर्म्स को समझिए क्या है आप जो बात कर रहे हैं, और ये जो आपने टर्म इस्तेमाल किया मैग्मा राइज करने की वजह से, मिड ओशनिक रीजेस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? मिड ओशनिक रीजेस की बात कर रहे हैं ना? ये सर रिलेट नहीं करना चाहिए पर मैं वो थोड़ा उस तरीके से सोच लिया, पर ठीक है ऐसा। मैं आपको समझाता हूँ ये चीज क्या है। मिड ओशनिक रीजेस में एडियाबेटिक डीकम्प्रेशन होता है। एडियाबेटिक डीकम्प्रेशन। अब एडियाबेटिक क्या होता है? ये कोई चीज है, इसके अंदर अपनी खुद की हीट है। ये क्रस्ट है, ठीक? ये टूटा यहां से, ये ऐसे करके टूटा, ये ऊपर आया, लेकिन अपनी इसने हीट नहीं चेंज की। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हेलो? यस सर। अब ये जब ऊपर आया तब ये लोअर प्रेशर में मेल्ट कर गया, अपनी हीट नहीं चेंज हुई। यहां पे वाटर का रोल देख रहे हैं मेल्टिंग में क्या है? वाटर का, मैग्मा का नहीं। वाटर कैसे रोल मेल्टिंग में प्ले कर रहा है? डिक्रीजिंग वाटर प्रेशर रेजेस द मेल्टिंग पॉइंट। इसका हमेशा आप लोग वाटर प्रेशर मेल्टिंग में हमेशा दाल का कॉन्सेप्ट याद रखिए। कुकर में दाल, अभी आप लोग जाइए डाल के देखिए, दाल कभी नहीं गलेगी बिना पानी के। अगर पानी ही नहीं है तो पानी का प्रेशर तो कम हो गया ना कुकर में। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? यस सर। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये आप मैग्मा की बात कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। यहाँ पे एडियाबेटिक मेल्टिंग आती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडियाबेटिक मेल्टिंग। वाटर कैसे मेल्ट करने को, वाटर कैसे मेल्टिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज योर वाटर प्रेशर, हाउ वाटर इज प्लेइंग, बट दिस कॉन्सेप्ट इज एडियाबेटिक डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, दैट इज इन केस ऑफ मिड ओशनिक रीजेस। जब वाटर की बात करें तो हमेशा मेरा बात मानिएगा, मैंने भी कहीं से पढ़ा था ये एग्जाम्पल, कुकर और दाल वाला, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलूं मैं? Yes, समझ sir. में आ गया हो तो? हेलो? Yes sir, got it. अब ये देखिए, ये चीज इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, ये फ्लक्स इंड्यूस मेल्टिंग होती है आपकी सबडक्शन जोन में। बहुत डिटेल में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे जब कभी आगे पढ़ना होगा, इसमें मौका लगता है तो। बट ये देखिए वाटर प्रेशर में ऐसे करके काम होता है। अब ये तो देखिए कि इक्वेशन पूछी गई है भाई, इसमें स्लोप पूछा गया है, क्या होता है इस इक्वेशन का। ये एनडीए तो सिंपल एक आइसोक्रोन उसकी डेटिंग इक्वेशन होती है। y is equals to, this is m, this is x and this is c। तो ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, m इसमें स्लोप होगा, ये इसका आंसर होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? हेलो, कोई डाउट इसमें किसी को इस वाले में? हाँ ना बोलिए भैया, यस और नो। हेलो, ये स्लोप वाले में किसी को डाउट है? आगे चले? शुड वी मूव फॉरवर्ड? हेलो, शुड वी मूव फॉरवर्ड? सो एक 39 वाला क्वेश्चन है, इट इज अगेन फ्रॉम क्यूए, व्हाट वी से दैट क्यूएपीएफ वाला जो डायग्राम है आपका। तो इसमें पूछा गया है कि भाई क्वार्ट्ज दिया गया है 20% से ज्यादा, तो 20% से ज्यादा आपका क्वार्ट्ज है,
प्लीजियोक्लेस 60% एंड प्लीजियोक्लेस अबाउट 60%। तो ये वाला जो रीजन है आपका, प्लीजियोक्लेस आपका 60% है और क्वार्ट्ज 20% से ज्यादा है। तो ग्रानोडायोराइट तो आपके ऑप्शन में नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन में ग्रानोडायोराइट देना चाहिए था बट नहीं है, तो नियरेस्ट ऑप्शन आपका टोनालाइट होगा, तो आंसर वुड बी टोनालाइट। ओके, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया उन लोगों ने, बट व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसको नहीं कर सकते। क्वार्ट्ज रिच ग्रेनाइट आपका 60% से ज्यादा होगा, क्वार्ट्ज मॉन्जोनाइट इसका कम होगा, बट ये आपका टोनालाइट होगा इसमें आंसर। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये आपका डायग्राम से है, इसमें जो ऑर्थोपायरोक्सिन क्लाइनोपायरोक्सिन सेम मात्रा में है तो ये ओलिविन गैम्बर होगा। ओके, नाउ कंसीडरिंग दिस 41 क्वेश्चन, इसमें जो है आपका जो है डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि क्या चीजें क्या क्या होंगी। अगर आप देखिए तो 3 आपका है वो सिल है, 4 आपका देखिए डाइक है, एक वर्टिकल चीज गई है, इट इज डाइक। ठीक, 6 आपका एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है डाइक में, दैट इज रिंग डाइक। 5 में देखिए एक सेंट्रल पॉइंट से चीजें बाहर जा रही हैं, दैट वुड बी योर रेडियल डाइक। और एक ये बड़ा सा एक चीज है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो इसका आंसर जो है आपका 1 होगा, दैट वुड बी 1। इसका आंसर जो है जो आपका होगा, इट वुड बी सिंपल 1। Now, in some granitic rocks, plegioclase overgrowths are observed over orthoclase mesocrist. ओके, ये ऑर्थोक्लेज है और इसके ऊपर प्लीजियोक्लेज ग्रो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएशन एट अ प्रेफर्ड साइट। न्यूक्लिएशन एट अ प्रेफर्ड साइट, और इट कैरेक्टरिस्टिक इट इज अ रापाकीवी टेक्सचर। देखिए इसमें लिखा होगा, इसमें कहीं लिखा होगा न्यूक्लिएशन एट अ प्रेफर्ड साइट। ये के फेल्ड्स्पार है, इसके ऊपर ये प्लीजियोक्लेज फेल्ड्स्पार। दैट्स इट। नाउ इन 43 क्वेश्चन, एक थर्मल वैली पूछी गई है, किसमें होती है ये फेज डायग्राम। इट वाज अ टफ क्वेश्चन, जिसने पढ़ा होगा वो बता पाएगा। इट इज नेफ्लिन कैल्साइट सिलिका। दिस इज अ थर्मल वैली व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। सी दिस यू, ये ऐसे करके, दीज आर द थर्मल वैलीज व्हिच इज डेवलप्ड। एक मेल्ट आपकी एल्कली मेल्ट है, एक मेल्ट आपकी क्वार्ट्ज रिच मेल्ट है। एल्कली मेल्ट और क्वार्ट्ज रिच मेल्ट के बीच में एक बैरियर है, मतलब जो फेल्ड्स्पेथॉइड रॉक बनाएगी, फेल्ड्स्पेथॉइड रिच रॉक बनाएगी, वो कभी सिलिका सैचुरेटेड नहीं होगी, और जो सिलिका रिच रॉक बनाएगी वो कभी फेल्ड्स्पेथॉइड नहीं बनाएगी। दिस इज अ थर्मल वैली, इट इज नेफ्लिन, सॉरी इट इज नेफ्लिन कैल्साइट सिलिका। ये लिखा भी हुआ है, देयर इज अ टेक्स्ट रिलेटेड इन this book, which is M.K. Bose, good book. So magnesium number, what is this magnesium number? So I think we will discuss this like it has been, like we have been discussing the paper from like say about 2 hours. So after this 44 question, we'll discuss this in some next session. Okay, is it okay with you guys? ये काफी लंबा हो गया सेशन, सो आई विल डिस्कस दिस सेशन विद यू गाइस लाइक आफ्टर दिस say about few days. I'll schedule the next class, so like say about 50% questions are left. नीचे स्टार्ट ही है, it is simple theoretical question है, बाकी जो conceptual question थे ये मैंने ज्यादातर डिस्कस कर दिए हैं। so next उसमें हम लोग आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें से ये बताइए कि कितने कितने लोगों ने अभी जो अभी लेफ्ट कर रहे हैं, कितने कितने लोगों ने प्री दिया है? प्लीज अब इंटरेक्ट करिए मेरे साथ, कितने कितने लोगों ने प्री दिया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी ज्वाइंड है? यस सर, मैंने दिया। हेलो लिंकन, ओके लिंकन, आप कहाँ से है? आपकी एमएससी कहाँ से है? एमएससी कहाँ से आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मदन, आपने दिया है? यस सर। मदन आपने दिया है, तो आपका कैसा कैसा नंबर बन रहा है इसमें? सर ठीक था सर,
198 अप्रोक्स आ रहा है सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जीएस जियोलॉजी मिला के यस सर। अच्छा, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। 175 180 कट ऑफ जाएगी, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, आपका हो जाएगा। 198 आ रहा है तो। यस सर। और ऋचा ने तो शायद पेपर दिया नहीं है। प्रीति, आपने पेपर दिया है? प्रीति हेलो, आपने पेपर दिया है? ओके। खाल, आपने पेपर दिया है? I think a class has become very hectic, so people are not willing to like discuss this. Never mind. Thank you for joining, and like I wish you all the very best, and we will meet in some next session. Okay. Good night. Bye.